India has reported a total of 3,961 active COVID-19 cases. The Ministry of Health and Family Welfare has updated the number of cases, with Kerala reporting the highest surge with 1,435 active cases. Despite only 35 new cases being reported in the past 24 hours, Kerala is followed by Maharashtra with 506 active cases. Delhi has a total of 483 patients. 4 deaths have been reported as well in the country in the past 24 hours. 1 death from Delhi, 1 from Uttar Pradesh, 1 from Karnataka and 1 from Kerala. The government says that most of these infections are mild and not fatal. And remember, of course, the numbers though are rising steadily. Citizens have been advised to follow precautionary measures and safety protocols. Arzu Seth is joining us live from Delhi. Arzu, have COVID-19 cases risen in the past 24 hours in the national capital? Well, there seems to be some relief for the national capital, as earlier there were 483 active cases, but now the number has decreased to 393, showing a reduction of 90 active cases. So, relief for the Delhi people, as the active cases have now reduced and there has been a reduction of 90 active cases. But yes, there has been a recovery also that the patients are doing. So that's a positive sign that the patients are showing. And also it is being said by the experts also that the impact of the this new variant is very less, and that's why the patient who got infected due to COVID are at the home isolation or either going to hospital, getting discharged very soon. So there has been a less impact, but yes, there has been a total 4 deaths since the January, which has been reported in the national capital till now, and the 3 deaths that were recently recorded within a week due to COVID. Yes, there were past illness that were also there, and after the COVID test was done, it was positive, and that's why incidentally the COVID-19 that it is being said. So yes, the number is increasing in the country. The cross of 4,000 has passed. But yet in national capital there is some sign of relief for the people, as the active cases have reduced by 90 active cases. Yes, Uday. Absolutely. Let me in fact quickly also rope in Shahid Ansari, who is joining us live from Mumbai. Shahid, if we talk about Maharashtra, is the COVID-19 count startling, serious, concerning for the state government? उदय, सबसे पहले अब तक की मैं अपडेट की बात करूं, जो करंट की अपडेट आई है और उसमें जो मौतें हुई हैं वो चौंका देने वाली है। महाराष्ट्र में अब तक की बात करें तो 59 जो है नए कोविड के जो है केसेस सामने आए हैं, और पूरे राज्य में अगर बात करें तो 494 केसेस एक्टिव केसेस हैं। 369 पेशेंट जो है डिस्चार्ज हुए हैं मुंबई से। ये 24 घंटे की अपडेट है बीते, और ये राहत की बात है कि 369 जो पेशेंट हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो है एक हैरान कर देने वाली और जो फिगर की जो बात है वो है 10 कोविड के मरीजों की मौत। अब इसके बाद आपको महाराष्ट्र के मैं अलग अलग हिस्से में जो कोविड के जो मरीजों की तादाद हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद मजीद जो है आगे की जानकारी मैं देता हूँ। मुंबई में जो है 20, थाने में 4, पुणे में 1, पुणे नगर निगम में 17, पिंपरी चिंचौड़ नगर निगम में जो है 2, सतारा में 2, कोल्हापुर नगर निगम में 2, सांगली नगर निगम में 1, और संभाजी में 1 और संभाजी नगर निगम में 7, अकोला नगर निगम में 2। ये रही है आपको आपके सामने जो है ये पूरे महाराष्ट्र की अपडेट है। और इसके साथ साथ जो है सबसे अहम इन सब के बीच में और सबसे चौंका देने वाला जो आंकड़ा है वो मौत का आंकड़ा है। यानी पूरे राज्य से जो है 10 लोगों की मौत अब तक कोविड की वजह से हो गई है। पूरे देश में जो है महाराष्ट्र का ये 10 लोगों की जो मौत है ये सबसे ज्यादा है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक अहम बात और भी है कि कहा यह भी गया है कि इन जो 10 मरीजों की मौत हुई है, कोविड पॉजिटिव तो थे, लेकिन 9 ऐसे मरीज जो थे इसमें उनको कोई ना कोई बीमारी थी, यानी गंभीर बीमारी थी। मौत का कारण जो है वो बीमारी भी हो सकती है, लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव था। जबकि एक की जो मौत हुई है वो उसको कोई और बीमारी नहीं थी, बल्कि वो कोरोना पॉजिटिव थी। इन सब के बीच में जो है सबसे कम उम्र की जो मौत हुई है कोरोना से वो है थाने जिले में कल्याण इलाके में एक 21 साल की युवती की। अब देखिए, इन सारी चीजों को देखते हुए अभी भी 10 लोगों की मौत के बाद भी जो है प्रशासन यही कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन 10 लोगों की मौत में जो है 9 लोगों की मौत जो है और भी कई बीमारी से ग्रसित रहे। और चूंकि होता यह है कि जब कोरोना ऐसे समय में जब हो जाता है
तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है किसी भी मरीज की वो खत्म हो जाती है। तो इस जो मौत को जो है हम सरकार ने जो है, जो प्रशासन ने यह भी कहा है कि इस तरह की जो मौत हुई है उसके बावजूद हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि लड़ने की जरूरत है और लापरवाही ना बरतें, ऐसा प्रशासन ने कहा है। लापरवाही ना बरतने के पीछे का मतलब यह है उदय कि अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है और उस बीमारी के बीच में भी अगर आपको कोरोना के सिम्टम नजर आते हैं तो आपको जो है घबराना नहीं है, बल्कि उसको लेकर आपको स्थानीय डॉक्टर या स्थानीय हॉस्पिटल में जाना है। लक्षण में अगर बात करें तो आपके बदन दर्द और बदन दर्द के साथ साथ जो है जुकाम, सर्दी, गले में खराश, सिर दर्द, उलझन, इस तरह के अगर आपको जो है सिम्टम नजर आते हैं तो ये हर एक के लिए है कि वो आप इसको लेकर लापरवाही ना बरतें, ये सख्ती से कहा गया है। और इसके बाद ये हिदायत दी गई है कि आप इसके लिए टेस्ट कराएं, और जरूरी नहीं है कि टेस्ट कराने के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, बल्कि होम आइसोलेशन और घरेलू उपचार से भी जो है ये सही हो सकता है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर का मशवरा बेहद जरूरी है। अब उदय, प्रशासन की तैयारी क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। चूंकि मुंबई शहर 2020 और 21 बिल्कुल बने रहिए आप हमारे संग शाहिद राजकिरण।